Good evening to all the students of class 10. Welcome once again to all of you in physics class. Our chapter is electricity. Today we will discuss about some important formula regarding electric power. Okay, here there is three formula for finding the derivation of electric power. Okay, one by one we will discuss about that. Okay, so here is a formula for calculating electric power. Okay, as we know that electric power, as a definition of electric power, is electrical work done, rate of doing work done is called electric power. Okay, once again, rate of doing work done is called electric power. Electric power equal to work done by time taken, and now power equal to W by T. W is the work done, okay, and T is the time. This one is, suppose that this one is equation 1. Now we also know that the work done W by current I when it flows for time T under a potential difference V is given by W equal to V into I into T, joule. Joule is the unit of work, and so W equal to V I T joules. Now putting this value of W in equation 1, here is equation 1, and we will write in place of W V I T. Okay, P equal to this W by T and V into I into T, and also in denominator also T will be cancelled and V into I. This is P equal to V into I. P equal to, we will also say that this power is equal to potential difference into current. Okay, this is the relation between power, potential difference and electric current, and power in terms of potential difference and current we will say also likewise. And now this is also given, and now second formula, this is the power as we from the first definition, first derivation of calculating power equal to V into I. Okay, and this is already calculated, and so from Ohm's law, V by I equal to R, as we know that V equal to IR. All of you know about Ohm's law. Ohm's law, very important topic of electricity. V equal to I into R. This one is equation 2. Now putting the value of V in equation 1, putting the value of V, here is the V equal to IR, we have to put in equation 1. We will get here, this is equation 1, P equal to V into I. Now we will write here that P equal to V into I. V, in place of V we will write IR. Okay, and I is also available here, and so P equal to I square R. Okay, this one is equation 1, and P equal to IR into I, that is I square R. This one is the second formula of power. Okay, power in terms of electric current and resistance. This is the formula, V equal to I square into R. And now third formula for calculating power P in terms of V and R. We have to find out value of power, formula of power in terms of V, potential difference and resistance. Okay, also once again we know that as previous, P equal to power equal to V into I, potential difference into current, that is in equation 1. Supposed we will suppose this one is equation 1. Now also from Ohm's law we will say here that V by I equal to R. Okay, V by I equal to R, since V equal to IR, and so also V equal to IR, and this also I equal to V by R. Okay, this one I is equal to V by R, and now putting this value of I in equation 1, we will get, this one is equation 1, V into I, P equal to V into I. In place of I we will write V by R, and now this power equal to V into V, that is V square by R. Okay, power in terms of potential difference and resistance. This one is the formula, third formula finding the power. Once again एक बार फिर हम लोग देखें, इसको समझ लें कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये, और इसमें हम लोग पावर के कुछ फार्मूला यूज करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, कैसे फार्मूला फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे.
और वीडियो को बिल्कुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल सावधानी से अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा और कॉपी में लिख करके दिखलाइएगा मुझे, मैं इसे देखूंगा अभी। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या है इसमें, फिर से बता दूं आपको। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम टेकन। जैसा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर जो लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाई टाइम टेकन होता है, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ये पावर इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया वर्क बाई टाइम। अब ये क्वेश्चन 1 मान लिया हम लोगों ने। वी ऑल्सो नो दैट द वर्क डन डब्ल्यू, हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि कोई वर्क डन डब्ल्यू होता है बाई करेंट आई के द्वारा, व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम फॉर द टाइम टी, टी समय तक कोई करंट फ्लो करता है और अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस उस समय भी होता है। तो ऐसे हालात में W का इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी देते हैं हम लोग, मतलब ये वर्क डन की जगह पर V इंटू आई इंटू टी हम लिख सकते हैं। जूल से हमारा ये यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन है। तो ये देखिए पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को पुट किया हम लोगों ने इक्वेशन 1 में। W का वैल्यू V इंटू आई इंटू टी, इससे हम लोग पुट किए हैं। ये इक्वेशन 1 P इक्वल टू W बाई टी है, W के जगह पे तो देखिए V आई टी बाई नीचे T है हमारा, T कैंसिल हो गया और V इंटू आई, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई। अब आ गया, हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू दिस इज 1, दिस इज द पावर, पावर है हमारा ये। तो पावर इक्वल टू कह सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, मतलब पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रूप में हम लोगों ने ये फार्मूला तय किया, निकाला। अब दूसरा फार्मूला देखेंगे, पावर का ये फार्मूला है, जैसे हम लोग अभी प्रूफ किया है। पावर इक्वल टू P इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, आई और आर के बीच में हम लोग पावर हम लोग देखेंगे। देखिए P इक्वल टू भी ये निकालेंगे हम लोग, पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, आई और आर के रूप में पावर का फार्मूला हम लोग निकालेंगे। देखिए हम लोग अभी इक्वेशन अभी जो प्रूफ किए हैं, V इक्वल टू यहाँ P इक्वल टू V इंटू आई, इक्वेशन 1 मान लिया इसको हम लोगों ने। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़े होंगे हम लोग पहले के बहुत सा वीडियो में भी उसके बारे में अध्ययन किए हैं। तो V बाई आई इक्वल टू आर कह सकते हैं हम लोग। तो ये V इक्वल टू आई आर ऐसा कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 आप मान लीजिए। अब ये हम देखें क्या, पुटिंग द वैल्यू, इस V का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा है ये P इक्वल टू V इंटू आई, इक्वेशन 2 में हमारा V इक्वल टू आई आर है, मतलब V के जगह पर आई आर हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाता है, P ये हाँ देखिए V के जब आई आर हो गया, R इंटू आई पहले से है, यहाँ पे एक और आई है, तो आई स्क्वायर आर हो गया, डबल आई हो गया तो आई स्क्वायर आर हो गया। P इन टर्म्स ऑफ करंट और रेसिस्टेंस के रूप में हम लोगों ने ये दूसरा फार्मूला निश्चित किया, हम लोगों ने दूसरा फार्मूला तैयार किया हम लोगों ने। अब ये तीसरा फार्मूला कह रहा है पावर P इन टर्म्स ऑफ V एंड R। पावर का फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के रूप में कैसे निकालें। अब देखिए फिर वही हम लोग जो पहले निकाले थे फर्स्ट में फार्मूला, वी नो दैट P इक्वल टू V इंटू आई लिखा हुआ, इक्वेशन 1 इसे मान लीजिए। फिर ओम्स लॉ में हम देखें V बाई आई इक्वल टू आर, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसमें, तो V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिर I जब निकालना होगा तो V बाई आर हो जाएगा ये। अब ये I का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। देखिए इक्वेशन 1 में है ना, V इंटू आई यूज करेंगे हम लोग क्या, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1 वी विल गेट, लिखा हुआ है यहाँ पे ना, P का वैल्यू निकालें हम लोग, पावर का वैल्यू P इक्वल टू V इंटू, यहाँ पे देखिए ये जो आई के जगह पर V बाई आर यूज करें। अब ये V मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर है दोनों, तो V स्क्वायर बाई आर, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब ये पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के रूप में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप सबके लिए और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे तैयारी कीजिएगा आप लोग। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। न्यूमेरिकल जब बनाएंगे आप पावर का, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, परीक्षा के उद्देश्य से भी आप तैयारी कीजिए इससे। तो ये फार्मूला जब याद रहेगा तो आराम से आप किसी में आप आराम से सेट करके आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आप सबको आज के लिए इतना, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक, वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, और फिर हम लोग आगे नए वीडियो के साथ आएंगे, और बिल्कुल ईमानदारी से इसको 2 बार वॉच कीजिएगा और कॉपी में लिख के लाइएगा। ठीक है।